Hello students, I am Ankita Nanavati and welcome to my channel. Today I am going to explain you the lessons some natural phenomena that is for class 8. For this lesson, we will learn basically two main topics. First is lightning and second is earthquake, right? Now, first of all, what is lightning? Our first question is, what is lightning? Flashes of light all over the sky during rain and thunderstorms, and the beautiful phenomena is called lightning. जब रेन आता है और थंडरस्टॉर्म होता है उस टाइम क्या होता है कि स्काई में हमें ब्यूटीफुल एक फेनोमेना दिखता है, फ्लैशेस ऑफ लाइट्स होती है. दैट लाइट इज कॉल्ड लाइटनिंग. इट इज कॉल्ड लाइटनिंग, राइट? वाई अकर्स. नाउ सबसे पहला रीजन होता है कि क्यों लाइटनिंग होती है. तो द रीजन इज कि इट अकर्स बिकॉज ऑफ अ मैसिव इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम क्लाउड टू क्लाउड और फ्रॉम क्लाउड टू ग्राउंड. जब इलेक्ट्रिक चार्ज वो एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में जाता है और क्लाउड से वो ग्राउंड में आता है, उस टाइम पे लाइटनिंग होती है. नाउ व्हेन वी सी द डेफिनेशन, द वर्ड इलेक्ट्रिक चार्ज कम्स, राइट? सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? So before learning about lightning in details, we need to learn about the electric charge and the methods of transferation and all the things we will learn. Okay, first of all, electric charge. As you all know, the atoms usually have two kinds of charges, positive and negative. Positive charges are called protons, and electrically charged called is electrons, right? Negative charges is called electrons. So objects are generally neutrally charged. उनमें दोनों का जो अमाउंट होता है वो इक्वल होता है, तो सो दे आर कॉल्ड न्यूट्रली चार्ज, राइट? बट व्हाट हैपेंस कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है तो बॉडी का चार्ज चेंज हो जाता है, राइट? एंड एज यू ऑल नो कि लाइक चार्जेस ऑलवेज repel each other and unlike charges attract each other. Clear up to here? Now I am going to explain you about the method of charging. Suppose एक ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज्ड है and other is not charged, तो उसका चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है, that we will learn. Methods of charging. Now चार्जिंग जो होती है, मेथड्स का चार्ज चेंज होता है. There are three methods. First of all, by friction. Second is by conduction, and third is by induction. Now, what is by friction? Friction means rub. To rub is called friction, right? जब rubbing हम करते हैं तो हम कहते हैं कि friction लग रहा है. So by rubbing one material with other, that is called by friction. For example, here we have glass rod that is also charged, that is positive, and there the silk cloth, right? Both are charged. But when we do friction, when we rub each other, so these charges go interchange. Positive charge will go into silk cloth and silk cloth will be negatively charged, right? So this is called by friction. In daily life, if you have noticed sometimes कि when you comb your hair and then the comb touches with your sweater, right? स्वेटर को जब टच होता है तो उसमें कई बार स्पार्क दिखता है और क्रैकलिंग साउंड होती है. दैट इज ड्यू टू द चार्जेस का इंटरचेंज हो रहा है, राइट? ट्रांसफर ऑफ चार्जेस एंड दैट मेथड इज बाय फ्रिक्शन. वो फ्रिक्शन की वजह से ये हो रहा है. क्लियर? Now second we have by conduction. Now what is conduction? See here what happens कि दोनों बॉडी in friction, दोनों जो बॉडी थी वो चार्ज थी, तो एक का चार्ज दूसरे ने इक्विप किया है. Now here what happens by touching a charged body. यहाँ पे दो बॉडी तो होती है बट एक बॉडी चार्ज है और दूसरी न्यूट्रल है. We have यहाँ पे एक ग्लास रॉड है and this is the metal plate, right? तो ये जो ग्लास रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज है, बट ये जो मेटल का रॉड है, मेटल की प्लेट है, वो न्यूट्रल है. तो यहाँ पे वी नीड टू टच, राइट? ग्लास रॉड को हम अगर मेटल की प्लेट के साथ टच करते हैं तो वो चार्ज उसमें अक्वायर हो रहा है, राइट? सो दिस इज द मेथड. दिस मेथड इज कॉल्ड बाय कंडक्शन. And third method which we have is by induction. Now what happens here? Induction में चीजों एक दूसरे को वो टच नहीं करता है, राइट? यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज तो है ग्लास रॉड और उसको आप पास लाते हो मेटल की रॉड के, तो विदाउट टचिंग मेटल की प्लेट जो है वो एक्वायर कर लेगी चार्ज ग्लास रॉड का, क्योंकि जो बॉडी चार्ज है उसी का ही चार्ज दूसरी बॉडी में जाता है. तो मेटल प्लेट जो कि हमने देखा कि वो न्यूट्रल थी, राइट? तो अब वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बाय इंडक्शन मेटल की प्लेट में आएगा एंड नाउ मेटल प्लेट विल बी पॉजिटिवली चार्ज, राइट? सो दीज ऑल आर थ्री मेथड्स ऑफ चार्जिंग. By friction, by conduction and by induction. These are the methods. Now what happens कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज करने के लिए एक
इंस्ट्रूमेंट भी होता है, राइट। अगर ये मेथड हमें यूज नहीं करनी है, बट वी वांट टू ट्रांसफर द चार्ज, सो विद द हेल्प ऑफ अ मेटल कंडक्टर, वो जो मेटल कंडक्टर है, दैट डिवाइस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप, राइट। दैट डिवाइस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। नाउ इलेक्ट्रोस्कोप, ये आई हैव ड्रॉन द डायग्राम, ये डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। ये इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है, ये जार है, ये बीच में जो है ये मेटल रॉड है, दिस इज मेटल लीव, ये जो दोनों है कि मेटल के लीव्स है, एंड यहाँ पे ऊपर एक नॉब होता है, कॉक, राइट। सो अब यहाँ हाउ दिस वर्क्स, राइट, कैन यू सी इट प्रॉपर्ली? ओके, हाउ दिस वर्क्स, तो यहाँ पे चार्ज ऑब्जेक्ट जो होता है इज टच टू द नॉब ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप के नॉब के पास चार्ज बॉडी को, ऑब्जेक्ट को हम टच करते हैं, देन ये जो बीच में रॉड है ये भी मेटल का रॉड है, तो द चार्ज इज ट्रांसफर टू द थिन लीव्स, ये जो थिन लीव्स है, मेटल के लीव्स है, उसे हम थिन लीव्स कहेंगे, वो बहुत पतले होते हैं, दैट्स व्हाई दे विल बी कॉल्ड, जो मेटल की स्ट्रिप्स है वो थिन लीव्स भी कह सकते हो। तो ये जो हमने चीज को सबसे पहले चार्ज बॉडी को हमने टच किया नॉब के साथ, देन द चार्ज इज ट्रांसफर टू द मेटल लीव्स थ्रू दिस रॉड, क्योंकि ये रॉड भी मेटल का है, तो थ्रू दिस रॉड इट ट्रांसफर्स एंड द मेटल स्ट्रिप्स, ये देखो यू कैन से कि ये रिपेल हो रहा है, राइट। व्हाई दिस रिपेल? बिकॉज द सेम अमाउंट, हमने अब देखा कि लाइक चार्जेस होगा तो वो रेपेल हो जाएगा, तो यहाँ पे वो रेपेल हो रहा है बिकॉज दे हैव सेम काइंड ऑफ चार्जेस, सो ऑन दिस प्रिंसिपल the electroscope works. Clear? So we learn how electroscope works, right? Now regarding to that, we will learn about the discharging and earthing. What is discharging? When two objects are there, one is completely charged and the other is non-charged, right? तो चार्ज बॉडी का जो करंट है, चार्ज है, वो अनचार्ज बॉडी में तब तक नहीं आता है जब तक दोनों बॉडी इक्वलाइज होते हैं, राइट, टिल दे बोथ आर इक्वलाइज, तो उस प्रोसेस को कहते हैं डिस्चार्जिंग। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर देयर एंड व्हेन अ चार्ज ऑब्जेक्ट comes in contact with uncharged object and they transfer the charge till both are equalized, that is called discharging. And the second term is earthing. Now earthing क्यों किया जाता है, that I am explaining you, but first of all what is earthing? When charged body comes in contact with अर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो जो उसका चार्ज है वो डायरेक्टली अर्थ के अंदर चला जाता है, दैट इज कॉल्ड अर्थिंग। आई एम रिपीटिंग इट, चार्ज बॉडी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे भी करके जब अर्थ के कांटेक्ट में आती है तो उसका चार्ज अर्थ के अंदर चला जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड अर्थिंग। नाउ अर्थिंग क्यों की जाती है? टू गेट रीड ऑफ द इलेक्ट्रिक शॉक। आपने घर में भी सुना होगा कि वायर जब कोई शॉक आता है, इलेक्ट्रिक करंट का शॉक लगता है और हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं तो वो कहता है कि अर्थिंग प्रॉपर नहीं है, ये टर्म हमने सुनी होती है, राइट। सो व्हाट इज अर्थिंग? उसका कहने का मतलब ये होता है कि जो वायरिंग का कनेक्शन डायरेक्ट उसका शॉक जाना चाहिए अर्थ में, वो कनेक्शन कहीं पे ब्रेक है या प्रॉपर नहीं है, तो वो ये कहेगा कि अर्थिंग इज नॉट प्रॉपर। सो अर्थिंग क्यों की जाती है? टू गेट रीड ऑफ द इलेक्ट्रिक शॉक्स। क्लियर? नाउ coming to the actual lightning that comes at the time of the thunderstorm and the rain, right? So first of all as I explained you कि clouds में electric charges होते हैं। So जो clouds है, clouds में always ऊपर की तरफ, जो ऊपर के पार्ट में always positive charge होता है and lower part में negative charge होता है, okay? So both charges are there present in clouds. Now what happens कि एयर जो है क्लाउड्स के आसपास की एयर ऑलवेज, हमने प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एयर एक इंसुलेटर है, राइट। बट जब लाइटनिंग होती है, मतलब जब रेन और ये आता है, तो ये चार्जेस इतने हाई हो जाते हैं कि एयर के इंसुलेटर की जो मेथड है, मतलब जो उसकी प्रॉपर्टी है, वो वहां पे ब्रेक हो जाती है और वो क्लाउड्स का चार्ज डायरेक्टली आसपास के एरिया में लगता है। वहां पे ओपन ग्राउंड भी हो सकता है, कोई हाउसेस भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी देयर, राइट। तो ये जो क्लाउड्स का चार्ज है वो डायरेक्टली एयर के थ्रू ये बिल्डिंग के ऊपर आता है और उस टाइम हम ये कहते हैं कि यहाँ पे लाइटनिंग हुई। क्लियर? अगेन आई एम रिपीटिंग, लाइटनिंग क्यों होती है, ये रीजन पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि इट अकर्स बिकॉज ऑफ मैसिव इलेक्ट्रिक चार्ज।
फ्लोइंग फ्रॉम क्लाउड टू क्लाउड और फ्रॉम क्लाउड टू ग्राउंड। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्लाउड टू क्लाउड, यहाँ पे और आसपास में भी क्लाउड होती है, तो एक क्लाउड से ये चार्ज दूसरे क्लाउड में पास ऑन होता है, या फिर ये क्लाउड का चार्ज ग्राउंड पे आता है और उस टाइम लाइटनिंग होती है, एंड इट इज रियली रियली डेंजरस। नाउ व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स, वो क्या होता है, एयर इन द पाथ, ये जो एयर पूरे पाथ में आता है, एयर जो होती है सारी वो हीट्स इनॉर्मसली राइट। तो ये जो टेम्परेचर होता है वो उस टाइम वो मोमेंटली होता है, नॉट द particularly but it is only momentarily. The temperature goes up to 30,000 degrees Celsius, right? Is the more than the sun's surface, right? So at that time air जो heat हो जाती है और उसका temperature होता है more than 30,000 degrees Celsius, but it is momentarily. Okay, now due to heat एयर क्या होता है, हमें ये पहले भी हमें पता है कि ड्यू टू हीट एयर एक्सपांड होती है, राइट। तो ये जो एक्सपांड होती है उसे हम कहते हैं वेव ऑफ वाइब्रेशन और शॉक वेव, क्योंकि इतनी ज्यादा हीट जब जनरेट होती है लाइटनिंग के टाइम तो एयर पूरी एक्सपांड होती है और उस एक्सपेंशन को हम कहते हैं वेव ऑफ वाइब्रेशन और शॉक वेव। ओके, नाउ और एज यू नो कि यहाँ पे एक क्वेश्चन हर बार आता है कि जब लाइटनिंग होती है तो हमें लाइट पहले क्यों दिखाई देती है, साउंड बाद में क्यों सुनाई देता है, बिकॉज लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन द साउंड। तो जब भी लाइटनिंग होती है उसके साथ एक साउंड होता है। अब ये साउंड किस चीज का, जब लाइटनिंग ऊपर से गिरती है तो ये नीचे कहीं पे ब्रेक होती है, टकराती है, तो उस वजह से ये साउंड प्रोड्यूस होता है। एंड लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन द साउंड, सो दैट वी सी लाइट फर्स्ट एंड वी हियर द साउंड आफ्टर द लाइट, राइट। सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ द लाइटनिंग। नाउ कई बार क्या होता है कि कैसे बचा जाए, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है या कैसे बचा जाए लाइटनिंग से, तो क्या होता है, हाई राइज बिल्डिंग होती है उसको ये ज्यादा रहता है रिस्क लाइटनिंग से, राइट, क्योंकि उसकी हाइट ज्यादा है। तो हाई राइज बिल्डिंग में क्या करते हैं ये लोग कि लाइटनिंग कंडक्टर लगाते हैं। ये लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, लाइटनिंग कंडक्टर एक डिवाइस होता है, वो बिल्डिंग के टॉप पे लगाया जाता है, ओके, और आउटर वॉल पे लगाया जाता है। तो जब भी ये थंडरस्टॉर्म आता है और लाइटनिंग होती है तो वो चार्ज जो होता है ये एक्वायर बिल्डिंग पे नहीं होता है। सी हमें पता है कि बिल्डिंग में सीमेंट, वायर्स, स्टील और बहुत सारी चीजें यूज होती है जो कि चार्जेस को एक्वायर इजीली कर लेंगे, ओके। सो ये कंडक्टर, लाइटनिंग कंडक्टर का वर्क क्या होता है कि वो आउटर वॉल पे लगते हैं, ओके, एंड वो डायरेक्टली वो करंट जो है वो चार्ज है अपने में एब्जॉर्ब करता है, और ये पूरी वॉल जितनी भी हाइट है बिल्डिंग की उतना लंबा ये लाइटनिंग कंडक्टर के अंदर का रॉड होता है। तो जब भी ये लाइटनिंग होती है तो वो रॉड के थ्रू वो सीधा नीचे एक प्लेट लगी होती है, मेटल की प्लेट अदर एंड पे, और वो मेटल की प्लेट होती है डीप इन द ग्राउंड, अर्थ में, ओके। सो जब ये करंट पास होता है तो वो रॉड के थ्रू वो पूरा ही करंट मेटल प्लेट पे जाएगा एंड वो पूरा डीप इन द ग्राउंड चला जाएगा और बिल्डिंग को वो हार्म नहीं करेगा। सो दिस इज हाउ लाइटनिंग कंडक्टर सेव्स द हाई राइज बिल्डिंग्स एंड सेव्स द लाइफ। Okay, so coming towards the last topic of the lightning, and that is the safety measures against lightning strike. जब lightning होती है, strike होती है, so what measures we should took, right? We should take. This is the measurement. Okay. Now first of all, usually strikes tall buildings and trees. Lightning कहाँ पे ज्यादा होती है? Tall buildings और trees पे strike होने का chances ज्यादा होता है. So these 2 points we should keep in mind and we should follow these terms. Now first of all, do not take shelter under a tree. Tree के नीचे कभी भी shelter नहीं लेना चाहिए. Why? Because as I told कि ट्री को ये चांसेस ज्यादा होते हैं लाइटनिंग को स्ट्राइक करने का, इस वजह से हमें ट्री के नीचे शेल्टर नहीं लेना चाहिए। एंड सेकेंडली, अगर लाइटनिंग नहीं भी होती है और थंडरस्टॉर्म हैवी है और रेन आता है और ट्री अगर फॉल डाउन होता है तो भी हमें हार्म कर सकता है। दैट्स व्हाई वी शुड नॉट टेक शेल्टर अंडर अ ट्री। नाउ सेकेंड पॉइंट, ट्राई टू टेक शेल्टर इंडोर्स। अगर प्रोबेबली जहां तक हो सकता है, पॉसिबल है, तो उस टाइम बाहर मत जाओ, राइट। कई लोगों को होता है कि रेन आई है तो हम एंजॉय करने जाते हैं, ठीक है, रेन के टाइम यू कैन गो, बट जब थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग होती है तो अवॉइड आउटगोइंग एंड स्टे इनडोर्स। दिस इज फॉर द सेफ्टी पर्पस। Third, we have can take a shelter inside a car or a truck. So now what about if you are outside the house? जो अगर आप घर के बाहर हो तो you can take a shelter inside a car or a truck, right? क्योंकि वो heavy vehicles होते हैं तो उनके ऊपर स्ट्राइक लाइटनिंग के स्ट्राइक के चांसेस कम रहते हैं, so you can be safe.
Fourth point we have, don't run across a large open field or high ground. जब लाइटनिंग होती है तो दौड़ के कभी ग्राउंड में गए ऐसा नहीं होता है. See, in this chapter we will learn about earthquake also. Both are natural phenomena but both are very different. earthquake आता है तो जनरली हम ये कहते हैं कि go to the open space, and lightning जब आती है तब हम ये कहते हैं कि don't go to the open space, just stay inside. So don't run across the large field or high ground at the time of the lightning. And last point, squat down in a low lying place. If you are outside then squat down, ऐसे करके हम बैठ जाते हैं low lying ground पे, so that हम पे ये lightning के या कोई भी चीज आसपास में कोई ग्लास है या कुछ भी चीज ब्रेक होती है तो हम पे वो टूटने के या गिरने के चांसेस कम रहते हैं. So we should follow all the safety purpose. First, I am repeating all the safety measurement. Do not take shelter under a tree. Try to take shelter indoors. Can take a shelter inside a car or a truck. Don't run across a large open field or high ground, and squat down in a low lying place. So these all topics we have covered for the lightning.